Good morning to all of you. Today I am going to start your third chapter, sentence structure. On the basis of structure and its constituent parts, sentence can be classified into three parts. First, simple sentence, second, compound sentence, and third, complex sentence. I will tell about today you simple sentence. Simple sentence is a sentence consisting one clause with a single subject and predicate, or you can say one independent clause that has a subject and a verb and express complete thought is called a simple sentence. Other definition, you can say a simple sentence is a sentence which has only one subject and only one predicate having one finite verb. Finite verb means the verb which governed by its subject. As we say Ram goes to school, here Ram is in singular form, singular subject, so we use here goes. If in the place of Ram we take you, then we say you go to school. Here you is in plural form, so we take here verb go. So those verbs which are governed by subject are called finite verbs. In simple sentence, I am giving you some example of simple sentence. For example, I like ice cream. Here like is linking verb. Like is linking verb. I like ice cream. This is a simple sentence. We walk slowly. This is also a simple sentence. They talk too much. This is also a simple sentence. My father goes to gym every day. It is a simple sentence. I run every weekend. This is also a simple sentence. My son lives London. This is also a simple sentence. In a simple sentence, you can see that in these sentences consisting a subject and its predicate. For example, you can see in your book some examples are also given. Woman danced, here woman subject, danced predicate. Birds fly, bird subject and fly predicate. In other sentence you can see Kishore is a doctor, here Kishore is subject, is verb and a doctor. A doctor here doing the work of complement. यहाँ पर किशोर इज ए डॉक्टर. हु इज डॉक्टर? किशोर. यहाँ डॉक्टर वर्ड आ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और इसको ऐड करने के लिए हमें इज़ का यूज़ करना पड़ रहा है. इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ए डॉक्टर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द बाइक इज़ माइन. यहाँ पर बाइक इज़ माइन, दिस बाइक इज़ माइन. यहाँ पर माइन वर्ड ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है. दिस बाइक इज़ माइन, इसलिए यहाँ पर माइन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट के विषय में हमको जानकारी देते हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं. Subject complement provide information about the subject of sentence, and object complement gives us more detail about object. Object complement जो होते हैं
वो हमको ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल देते हैं। जैसे आई ट्रस्ट यू, यहाँ पर यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब आया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। सी द एग्जाम्पल, सी हेल्प्ड द पुअर पेशेंट। यहाँ हेल्प्ड ट्रांसिटिव वर्ब है और द पुअर पेशेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए द पुअर पेशेंट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यू नो द मैन, यहाँ पर नो ट्रांसिटिव वर्ब है, द मैन ऑब्जेक्ट है, इसलिए द मैन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। कहीं कहीं अक्सर हम देखते हैं कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स गिवन इन ए सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर बॉट मी ए लैपटॉप। हियर बॉट इज ट्रांसिटिव वर्ब and after bought, me indirect object and a laptop of direct object। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो आते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे लैपटॉप, लैपटॉप निर्जीव है और मी सजीव है, इसलिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सजीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और निर्जीव ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अदर एग्जाम्पल यू कैन से, दे हायर्ड मी ए टैक्सी। हायर्ड यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब है और मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए टैक्सी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अंडरस्टूड? तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद अगर जो वर्ड आते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और अगर सेंटेंस लिंकिंग वर्ब से जुड़ा है तो उसके बाद जो वर्ड आते हैं उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जैसे ए डॉक्टर है, नाउन है, हो सकता है माइन है, ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एंग्री, साइलेंट, इस तरीके से ये वर्ड आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आते हैं और ये लिंकिंग वर्ब से जुड़े होते हैं। अब इसमें आपको एक्सरसाइज में जो पेज नंबर 18 है, इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कहीं दिया है, कहीं ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और सेकंड एक्सरसाइज, pick out complements from the sentence and say whether they are subjective or objective। आप देखिए फर्स्ट सेंटेंस, वी इलेक्टेड हिम आवर रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड हिम, यहाँ हिम और आवर रिप्रेजेंटेटिव दो वर्ड आए हैं। इलेक्टेड ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए हिम आवर रिप्रेजेंटेटिव ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ही इज़ एन एक्टर ऑफ ग्रेट रिप्यूट, यहाँ इज़ लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ इज़ के बाद एन एक्टर ऑफ ग्रेट रिप्यूट ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। सी लुक्स टायर्ड, यहाँ लुक्स लिंकिंग वर्ब्स है, इसलिए टायर्ड यहाँ पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। आई फाउंड हिम एस्लीप, यहाँ फाउंड ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम आया हुआ है और एस्लीप आया हुआ है, तो ये हिम एस्लीप ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सो टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। आर simple sentence you can say that it is a independent clause, contains a subject and a predicate। तो स्टूडेंट्स
Today I have discussed about simple sentence. I have given you some example of simple sentence and exercise given in your book. First complete your sentence and second you have to pick out subjective or objective complements. So here you will see the verb is linking. After that you will find subjective complement, and if the verb is given transitive, then after transitive verb you will find the objective complement. So today you have to do the exercise on page number 18 and 19 and write the definition of simple sentence with example. Thank you very much.